Okay, welcome back once again, my dear student of Standard Ninth, and this is the last part of the chapter number 11, that is Indian Judiciary. Friends, we already covered its part 1 and part 2. We already covered High Court and Supreme Court. Basically, High Court we are going to discuss some part here also, and we will discuss district courts, and we will discuss Lok Adalat and so on things on this lecture. So, friends, without any delay, let's get started. Okay, so not this. Okay, so as you can see, the jurisdiction of the High Court. Friends, we already discussed the jurisdiction of the Supreme Court. अगर आपने वो देखा हुआ है, then things get easier for you to understand, for understanding purpose, because more or the less jurisdiction is the same. Okay. The power and the functions of the High Court can be divided into three jurisdictions. Original jurisdiction. So let us go through the original jurisdiction. Under the original jurisdiction, the High Court is empowered to issue direction, order, rights, including the rights and the nature of habeas corpus to any person, authority of any government in case of the violation of the fundamental rights of citizens. ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था हैबस कॉपस में मैंडमस क्या होता है राइट दैट government is required to present that person in front of the court if court's order. Okay, and fundamental rights के तो violation के यहाँ पे एक्ट सुने ही जाते हैं. The High Court has the authority to authority in the cases related to the company's marriage, divorce and alimony. Alimony is an एक्ट जहाँ पे पैसे का सेटलमेंट किया जाता है after the divorce and all that. The concept of the court, land revenue and its reimbursement, land reforms and return can also be carried out by the High Court. So केस ज़मीन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको जो हर्जाना देना होता है. कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट किसी की ज़मीन प्रोक्योर करती है. से फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई सड़क बनानी है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से फॉर एग्जांपल एक फार्मर को उसने 30 लाख दिया, लेकिन फार्मर कह रहा है कि नहीं, मार्केट वैल्यू तो मेरी 80 लाख है, आप 30 लाख मुझे क्यों दोगे, मैं नहीं बेचता. तो डेट पर्सन वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकता है. एंड जो भी कोर्ट का ऑर्डर रहेगा फिर गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा और उसको पेमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. ऑल द राइट्स पिटिशन चैलेंज इन द जजमेंट बाय द लोअर कोर्ट एंड द सिविल एंड द क्रिमिनल कोर्ट कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट. नीचे के केस से अगर कोई खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में आके अपना केस लड़ सकते हैं. दिस पिटिशन चैलेंज इन द प्रोविजन प्रोवाइडिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. कई बार एंट्रेंस एग्जाम में चोरी हो जाती है, एग्जाम्स कैंसिल हो जाती हैं, कुछ सिलेक्शन को लेकर कुछ इश्यूज होते हैं, तो इस टाइप के इश्यूज भी यूजुअली हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर में कवर होते हैं. एपेलेट, एज आई ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था, हाई सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिडिक्शन में जो अपील की जाती हैं. ओके, so under the appellate jurisdiction of the high court, the court hears the petition against the civil and the criminal cases. यहाँ पे भी सेम सिविल एंड क्रिमिनल केसेस लड़े जाते हैं. एनी पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट. सो लोअर कोर्ट से जो भी मतलब अपील होती है वो यहाँ पर सुनी जाती हैं. In the case, session court has the any judgment punishing accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in the high court. यानी किसी भी मतलब दोषी को अगर लोअर कोर्ट ने 4 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है तो इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. If any accused is given capital punishment by the session court in case of murder or which is less severe than the punishment is issued, the lower court can then in such condition the judgment can be challenged in the high court. Same thing जो मर्डर केसेस में होता है ये सब. The petitioner who is unsatisfied with the judgment of the tribunal can also approach to the high court. यानी कोई भी जो केस करता है वो इंसान अगर अपने डिसीजन से खुश नहीं है लोअर कोर्ट के, तो दैट पर्सन कैन अपील इन द हाई कोर्ट ऑल्सो. लास्ट 2 लाइन्स. The High Court has a power to decide upon important questions pertaining to the law, including the constitutional interpretation. सेम वही 3 चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थी. ओके, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में थी. सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस की जाती हैं. तो मोर और द लेस दोनों सेम ही है. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड स्लाइड.
constitutional interpretation. Okay, now third one is administrative jurisdiction. Now administrative jurisdiction में क्या होता है? Each high court has an authority and power to supervise the working of the subordinate courts and the tribunal of the state or of its regions. If the high court feel it is necessary, then it can seek case paper from the subordinate court and then can carry out the case proceeding. देखो, अगर हाई कोर्ट का जो स्टेट की जो एपेक्स कोर्ट होती है उसका उसके लोअर कोर्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और नॉर्मल कोर्ट पे उसका मतलब ट्रिब्यूनल्स पे उसका पूरा मतलब हक होता है. एंड इवन कभी कोई केस के पेपर्स उनको अगर मंगवाने हैं तो दे कैन ऑर्डर ऑल्सो. The court can frame general laws to control the procedure and functioning of the court under its power. High Court can decide the criteria and the tabular form of the various type of fees. All these provisions should be in the accord with the harmony of the constitution. मतलब वो फीस डिसाइड कर सकती है, वो कैसे केस जाएंगे वो डिसाइड कर सकती है, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू मतलब हारमोनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उससे मैचिंग ही रहनी चाहिए. The High Court can guide and direct the subordinate court in the matter of maintaining the records and such entries. I think यहाँ एंड की स्पेलिंग रॉन्ग है. Anyhow, चलिए आगे बढ़ते हैं. And now we are going for the another important paragraph. A High Court occupy place of the court of record. इसे भी हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे. A High Court publish its judgment decision in an organized form. ओके, सो उनकी पूरी चार्जशीट होती है और अच्छी से वो पूरा डिसीजन की पेपर्स होते हैं. ओके, एंड दिस जजमेंट यू वॉन्ट बिलीव अभी जो राम मंदिर का केस आया था उसके 1100 से भी ज़्यादा का मतलब डिसीजन था जो मतलब पूरा केस कवर करता है. द हाई कोर्ट पब्लिश इट्स जजमेंट डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म. दिस जजमेंट एंड डिसीजन बाइंडिंग एंड फाइनल फॉर दे कैन यूज दिस कोर्ट डिसीजन एंड जजमेंट एज ए रेफरेंस वाइल टेक द डिसीजन ऑन वेरियस केसेस इन फ्यूचर. ये केसेस का आगे फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सकता है. द लॉयर्स यूज दिस पब्लिश जजमेंट एंड डिसीजन सिटेशन वाइल प्लीडिंग देयर केसेस, है ना. आगे फ्यूचर में जब कोई वकील अपना केस लड़ेगा तो वो पुराने केसेस का मतलब रेफरेंस दिया जा सकता है. एंड फ्रेंड्स, कई बार ये न्यूज़पेपर में भी आता है कि कोर्ट ने कल ये डिसीजन सुना है. तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता रहेगा कि एक्चुअली हमारे कोर्ट्स क्या क्या डिसीजन सुना रहे हैं. अ कोर्ट हैज ए पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. जो कोई अदालत की तौहीन करता है, ठीक है, वो मैंने कल थोड़ा सा ड्रामा करके दिखाया था कि जज साहब झूठा है ये इंसान, मतलब हाँ भाई ये कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है. ऐसा नहीं होता है. द हाई कोर्ट ऑफ द गुजरात इज लोकेटेड ऑन द सरकेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद. ठीक है, आप अगर ऐसी हाईवे से कभी ट्रैवल करो तो वहाँ पे आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा. और अदरवाइज 160 नंबर की बस तो हमारे घर के पास से ही जाती है सीधा फ्रॉम हाटकेश्वर. पर अच्छा है कभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि कोर्ट में जाना पड़े, कोर्ट का मुंह देखना पड़े. सबऑर्डिनेट कोर्ट, देखो एक कोर्ट होती है तो उसके साथ कुछ हेल्पिंग कोर्ट्स भी होती हैं ताकि जो वर्कलोड है उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ऐसी होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो ये क्या है, लेट्स सी. अंडर द गाइडेंस ऑफ द एंड सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट देयर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट. देखो हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट तो होती है. इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोटा कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड सर्टेन स्पेशल कोर्ट्स. Each state is divided into an administrative unit is called the district and consisting the civil court, criminal court and revenue court. मतलब इतने अलग अलग टाइप के कोर्ट्स होते हैं. आपको यहाँ पे सिर्फ आपको उसके नाम याद रखने हैं, उसके अंदर क्या होता है वो आपका मैटर नहीं है. वो सब आपको आगे एक तरह से LLB करोगे तब आएगा. अभी इतना कुछ काम का नहीं है. अभी आप सिर्फ इतना नाम रखो कि इतने टाइप के कोर्ट्स होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. नाउ अभी हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हमने हाई कोर्ट देख लिया. अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के अंडर में आता है. सुप्रीम कोर्ट के भी अंडर में आ जाता है. एंड यहाँ पर भी वही सब होगा, जजेस की क्या क्वालिफिकेशन है, इनके पास क्या क्या पावर्स होते हैं, ऑल डेट ज़्यादा. चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. द अपॉइंटमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ एनी इंडिविजुअल टू द पोस्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर, जो मतलब स्टेट का इंपॉर्टेंट गवर्नर होते हैं, मेन हेड, एंड जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनसे मतलब डिस्कशन के बाद ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को डिसाइड किया जाता है.
टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन, चलो क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके डन। ए पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। कोई सिटीजन ऑफ म्यांमार तो पकड़ के लाएंगे नहीं हम लोग, ठीक है। बंगाल का कोई सॉरी बांग्लादेश का कोई जज पकड़ के लाएंगे नहीं। सिंपल सी बात है, इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। शुड पोजेस अ प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, कम से कम उसको 7 ईयर्स का एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए। एन ऑफिसर इन द जुडिशरी इज आइदर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। एक ऑफिसर है जो जुडिशरी का या फिर वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे है तो भी वो मतलब उसको तुरंत ही जज अपॉइंट किया जा सकता है। ऑल द अदर जजेस अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड एज द गवर्नर बाय द गवर्नर और द हाई कोर्ट इन द कंसल्टेशन ऑफ द विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि बाकी जो जजेस होते हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उनको अपॉइंट किया जाता है। ओके जस्ट ए मिनट। चलिए, द जजेस हु हैंडल द, देखो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट आएगा। अब स्टूडेंट्स नाउ थोड़े अलर्ट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि अब जो आएगा ना वो एग्जाम में बैंड बजा सकता है और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत सही है। द जज हु हैंडल द सिविल सूट्स, सिविल केसेस समझ में आ गया, हाउस और प्रॉपर्टी के होते हैं जो। सिविल सूट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज। अगर आपको बोला यार डिस्ट्रिक्ट जज है तो आप समझ जाना कि ये सिविल केसेस देखते हैं। एंड द जज हु हैंडल द क्रिमिनल केसेस इज कॉल्ड द सेशन जज, ठीक है। तो सेशन जज क्रिमिनल केसेस देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज यूजुअली सिविल केसेस देखते हैं, ठीक है। अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर द पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट और द लोअर कोर्ट अंडर इट। ऑल द civil suit of rupees 1 lakh or more either by the government or against the government carried out in the district civil court। तो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में वो केस लड़े जाते हैं जो जिसके मतलब केस की जो मतलब क्लेम्स होते हैं वो 1 लाख से ऊपर हो। मैंने कल पेंसिल का एग्जांपल दिया था सो वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। अ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ अ पावर टू रन और केसेज ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, एलिमनी, रिफॉर्म्स एंड केसेज ऑफ द पेरेंटल कस्टडी। कई बार हस्बैंड वाइफ की में डिवोर्स हो जाता है तो बच्चा कहाँ जाएगा, किसके पास रहेगा, वो सब मैटर भी ये सब देखते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी मूवीज और सीरियल्स में सब फालतू के ड्रामे देख लिए होंगे। एनी हाउ, द क्रिमिनल कोर्ट इंक्लूड सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलादार एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। बाप रे इतने सारे कोर्ट होते हैं दिस कोर्ट्स हैव अ पावर टू गिव पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10 ईयर्स। ओके, तो ये जो कोर्ट्स होते हैं जितने भी मैंने भी नाम पढ़े ये 3 to 10 ईयर्स तक का मतलब सजा दे देते हैं। एंड पेनल्टी अप टू ₹5,000 और मोर। इन केस ऑफ अ मर्डर द कोर्ट कैन गिव कैपिटल पनिशमेंट, मतलब लटका ही देते हैं, ठीक है। एंड द लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, लाइफ सेंटेंसेस, तो लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया जाता है कई बार। ओके, अपार्ट वाला आया था। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इन स्मॉल causes court of the family court too for the case pertaining to the land revenue there is a revenue court correction and for the dispute of the labor there is a labor court along with the other tribunal। labor related जो issues होते हैं वो labor court में चलते हैं एंड जो land revenue से जो related case होते हैं वो land revenue में चलते हैं। अच्छा, जो लोग यूट्यूब पे फ्लाइंग बिस्ट को फॉलो कर रहे हैं एंड वो जो एक एरो पायलट है उनका अभी लेबर कोर्ट में केस चल रहा है, अभी जस्ट लाइव चल रहा है। तो मेरी उस पर भी नज़र है एंड वो बंदा हर रोज़ अपने ब्लॉग में बताता है कि क्या क्या इंसिडेंट उसके साथ हो रहे हैं। सो मेरा भी उस पर एक नज़र है, बट आप लोग देख लेना टाइम हो तो, नहीं देखोगे तो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। As per the example of the tribunal for compensating vehicle accident,
for the production of the service and other rights as a teacher, professor. There is an Gujarat Education Organization Service Tribunal. ओके, ये तो हमारे लिए काम की बात है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, व्हीकल एक्सीडेंट के लिए तो होता ही है, लेकिन जो टीचर्स और प्रोफेसर होते हैं उनके लिए देर से गुजरात एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल भी होता है, जहाँ पे हम लोग अपनी मांगे रख सकते हैं। ट्रिब्यूनल ऑफ रिकवरिंग डेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन फोरम होता है ना। दिस ट्रिब्यूनल्स फंक्शंस लाइक अ कोर्ट, ये ट्रिब्यूनल भी मतलब कोर्ट की तरह ही फंक्शन करती हैं। एंड हेल्प द केसेज वेयर इन द पिटिशनर रिकवर देयर लॉसेज एंड रिसीव द कंपनसेशन, यहाँ पे वो कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू रन द केस फास्टर, बट इंडिया में ये थोड़ा सा स्लो ही है। फॉर हियरिंग द केस ऑफ पोटा, देयर इज अ पोटा कोर्ट इन गुजरात। ऑल दिस कोर्ट्स हैव गैदर importance and decentralizing their administration and function independently, firmly and lawfully. People have started taking all the benefits to have become aware, ठीक है। तो ये सब होता है। पोटा कोर्ट यूजुअली आतंकवाद को, टेररिस्ट एक्टिविटी को कम करने के लिए लगाया हुआ है। चलो लोक अदालत की बात करते हैं। लोक अदालत एक ऐसा है जो हमको डिस्कस करना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। गुजरात स्टेट इज द first to start the Lok Adalat for providing speedy and economical justice for the poor, weak and exploited section of the society। देखो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास मतलब पैसे नहीं होते हैं और जो वकीलों की महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके लिए यूजुअली लोक अदालत फॉर्म की गई है। ये हमने यूजुअली ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7th में भी देख लिया है। अंडर दिस कोड provide free support, okay, free support and guidance through the legal aid service center situated in the Ahmedabad, okay। so यहाँ पे उनको मतलब एक लीगल असिस्टेंस दी जाती है। दोनों पार्टी, यहाँ पे कोई हारता जीतता नहीं है, बट एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है, अंडरस्टैंडिंग, एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। लोक अदालत फंक्शंस वॉलेंट्रीली इवन ऑन संडे। संडे के दिन इसको क्यों रखा जाता है? क्योंकि उस दिन लोगों की छुट्टी होती है और बहुत सारे लोग ऑफिस में जाना होता है, तो वो संडे को ही प्रेफर करते हैं। एंड हॉलीडे एट द ओके ओनली 2 लाइन्स। हॉलीडे एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द तालुका हेडक्वार्टर एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशनर, यानी जो कंप्लेंट कर रहा है उसके सहूलियत के हिसाब से मतलब केसेस को लड़ा जाता है, केसेस सुने जाते हैं। लड़ाई तो यहाँ पे कहाँ होती है। द लोक अदालत जनरली हियर द केसेस ऑफ द एक्सीडेंट एंड रिलेटेड टू कंपनसेशन, डाइवोर्स, एलिमनी, जनरल डेप्ट, पर्सनल कंप्लेंट। तो ये छोटे मोटे केसेस होते हैं, ये मतलब एक तरह से लोक अदालत ही देख लेता है। पुलिस कंप्लेन, ओके। एंड लोक अदालत कंसिस्ट एडवोकेट एंड सोशल, इसमें मतलब लोक अदालत में कौन कौन होते हैं? एडवोकेट्स तो होते ही हैं, इवन सोशल वर्कर्स होते हैं, रेप्यूटेड सिटीजन्स, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, इंश्योरेंस ऑफिसर, जज एंड द जुडिशल ऑफिसर्स, यानी जो मतलब हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो भी इस दिन यहाँ पे आके केसेस देखते हैं और उनको निपटाते भी हैं। हियर केसेस इज सेटल एमिकेबली सच दैट बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाई, है ना। मैंने कहा था ना, बीच का रास्ता निकाला जाता है जहाँ पे दोनों पार्टियों को मतलब एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है। द केस फॉट इन द लोक अदालत इज नाइदर वॉन और लॉस, एज आई सेड, अभी कोई हारता और जीतता नहीं है। लोक अदालत सेव टाइम एंड मनी। जो नॉर्मली अगर हम लोग कोर्ट में धक्के खाते तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन लोक अदालत क्या करती है? टाइम और मनी दोनों को बचाती है। मैनी पेंडिंग केसेस आर सॉल्व, यहाँ पे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जाते हैं। ऑल द जजमेंट ऑफ द लोक अदालत आर बैक्ड बाय द लॉ, और इसको मतलब एक कानून की मान्यता भी मिली हुई है। एंड देयरफॉर द लोक अदालत हैव बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ज़्यादातर लोग लोक अदालत को प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मूवीज़ में आपने देखा होगा, आई थिंक नायक मूवी जिसमें अनिल कपूर होता है, उसमें ना जब मुझे वो विलन का नाम याद नहीं आ रहा है, ओम पुरी नहीं अमरीश पुरी, हाँ ओम पुरी के भाई है अमरीश पुरी। जो विलन होता है वो सीएम होता है ना। और वो सीएम उनको पुलिस वाले फ़ोन करते हैं, सर यहाँ पे पार्टी कंट्रोल में है तो टीयर गैस छोड़ के भीड़ को भगा दूँ, तो वो मना कर देते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। अगर वो पुलिस वाला अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है
तो क्या करेगा अमरीश पुरी, या तो उसको जॉब से निकाल सकता है या फिर उसका ट्रांसफ़र कर सकता है। मीन्स पूरी पुलिस है ना वो मिनिस्टर के अंडर में आती है और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमको या तो जॉब से निकाल देंगे या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हो या मूवी में हो, वो कभी जजेस के लिए कुछ नहीं कर सकते, जजेस की प्लेसमेंट नहीं कर, जजेस के ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनका रिक्रूटमेंट नहीं रोक सकते, उनकी सैलरी नहीं रोक सकते। मीन्स जुडिशरी पूरी इंडिपेंडेंट है। तो कभी वकीलों को डर नहीं होता है कि मेरा कल मैंने अगर ये डिसीजन सुना दिया तो मुझे ये मेरे साथ ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन रियल लाइफ और मूवीज़ में भी कभी दिखाते नहीं है, इसलिए सेंसर बोर्ड रखा गया है ताकि कुछ चीज़ें जो होती हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ वो रहें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The Indian Constitution has kept the judiciary independent, firm, fearless, and the legislature and the executive from the protection of the fundamental rights of the citizen for the social, political, and economical equality for providing justice. So, legislative जो कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव यानी जो गवर्नमेंट रन करती है, उनसे मतलब इसको अलग ही रखा गया है ताकि लोगों को अच्छे से न्याय मिल पाए। अगर मान लो गवर्नमेंट अगर पब्लिक की बात नहीं सुन रही तो उनके पास रास्ता क्या बचेगा? उनके पास एक ही रास्ता बचेगा, डेट इज द जुडिशरी। द जुडिशरी शुड नॉट इंक्लाइन ऑन द बायस टूवर्ड द गवर्नमेंट। वो कभी भी मतलब किसी के प्रति बायस नहीं होती है जुडिशरी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही डिसीजन लेती है, और जो सच है तो सच है और जो झूठ है सो झूठ है। The terms and condition for the appointment of the judges, appointment of the process, pay scale, transfer, promotion, recruitment is taken by the executive as per the constitutional provision. constitution provision के हिसाब से ही सारा होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। द जज आर अपॉइंटेड फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, 65 ईयर्स है, सुप्रीम कोर्ट 62 ईयर्स, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे The executive cannot remove any judges due to their will or any political pressure. तो कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर डाले बिना इनका ट्रांसफ़र और इनको उनके जॉब से नहीं हटाया जा सकता। द पे स्केल यानी उनकी जो सैलरी होती है, द टर्म्स ऑफ द सर्विस, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, बेनिफिट ऑफ प्रमोशन, पेंशन फंड ऑफ जज कैन नॉट बी अल्टर। इवन वो लोग उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द सर्विसेज द जजेस ऑफ एनी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द जजमेंट cannot be discussed on a critically reviewed on the parliament and legislative assembly। ये मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि जो कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किए जाते हैं, वरना इसको कंटेम्प्ट टू द कोर्ट माना जाएगा। ओके, द जज आफ्टर देयर, ओके ये रहा, आफ्टर देयर थर्ड लाइन, ओके, रिटायरमेंट कैन नॉट कैरी आउट देयर प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। तो जजेस जो होते हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद कहीं पे भी एज ए जज या फिर लॉयर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट लॉयर, उसका क्या प्रोविजन है, बट जज एज ए जज तो अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते। द पावर इज टू एम्पावर द जज टू परफॉर्म देयर ड्यूटी fearlessly, honestly, self-reliantly, independently and firmly, so that the judge can impart true, transparent and quick justice। ठीक है, तो इसलिए मतलब इतना जज को इतने पावर दिए गए ताकि वो ईमानदारी से, बिना किसी के प्रेशर में आए, बिना किसी से डरे और बिल्कुल ईमानदारी से अपना जजमेंट सुना सकें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द जुडिशरी एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड यूनिफॉर्म प्लेस। द केसेस ऑफ द पब्लिक वेलफेयर एंड द क्वेश्चन द पब्लिक वेलफेयर इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम pertaining to the public welfare and can be written on a simple postcard and ordinary letter to the Supreme Court. In the past, Supreme Court has treated such matters and as a petitioner has given trend to settling judgment. This has proved a vigilance of the judiciary in the public। और जुडिशरी से मतलब पब्लिक को काफ़ी सपोर्ट मिल भी रहा है। चलो फ्रेंड्स, क्लोजिंग करते हैं चैप्टर की और कुछ चीज़ें देखते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस इन अवर जुडिशरी। हमारी जुडिशरी पे बहुत अभी वर्कलोड का प्रेशर है। 3.5 करोड़ तो केसेस पेंडिंग है। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कोर्ट्स, हमारे पास कोर्ट्स के सफिशिएंट नंबर्स नहीं है। जजेस एंड स्टाफ इज द रीजन इन डिले इन जस्टिस। एक तो हमारे पास स्टाफ की कमी है, कोर्ट्स की कमी है, इवन जजेस की कमी है, इसलिए हमारा इतना डिले हो रहा है। In the present, central government has undertaken the task of reframing 1,500 and old irrelevant laws। और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ 1-1.5 हज़ार फालतू के लॉस भी हटा दिए हैं।
आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा. फ्रेंड्स, डोंट रिमेंबर टू वॉच जोली LLB ओरिजिनल ऑफ अरशद वारसी एंड जोली LLB 2 जो अक्षय कुमार की मूवी है. दोनों मूवी देखना, आपको मतलब बहुत अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ लॉ से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कानून कैसे काम करता है, एक वकील कैसे काम करता है, जजेस कैसे होते हैं. वेल, दोनों मूवीज में आपको जजेस मज़ा आ जाएगा. ओके, सो विद दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ. यू गाइस आर अमेजिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग.